Guys, this is Commerce chapter first, class 12th. Now, firstly, we have done commission brokerage and now discount. So, discount means what? Now, listen. Discount means what? Discount में क्या क्या पढ़ना है आपको? Present worth, sum due, true discount. When goods are sold on credit, the price quoted for goods includes a sufficient margin of interest for the period or of credit allowed. सो लेट द गुड्स बी वर्थ ₹100। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ₹100 का कोई गुड्स है, उसके ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड ऑन द स्पॉट, इफ़ अ क्रेडिट ऑफ 3 months इज़ अलाउड, देन द बिजनेस मैन विल क्वाइट द प्राइस बी एडिंग इंटरेस्ट फॉर 3 months। गॉट इट? एंड इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% per annum, then the interest for 3 months will be ₹4। Hence, the customer has to pay ₹104 after 3 months. So 104 due after 3 months or at 16% per annum is equivalent to ₹100 today. Okay, so ₹100 is known as what? Present worth. Please ध्यान दीजिएगा, PW of 104 due after 3 months, तो 104 is known as what? Sum due. क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रेजेंट वर्थ आपका ₹100 हुआ और 104 विद इंटरेस्ट हो गया सम ड्यू, एंड ₹4 इज नोन एज ट्रू डिस्काउंट. So on the sum due, we can say that what? On the sum due, present worth plus true discount is called sum due. Clear? Yes. And यहाँ पे TD की फॉर्मूला है क्या? ध्यान दीजिए यहाँ पे TD मतलब ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू PW इंटू N इंटू R अपॉन 100, और या फिर SD इज इक्वल टू PW प्लस N. PW का मतलब होगा प्रेजेंट वर्थ, ध्यान दीजिएगा, इंटू N इंटू R अपॉन 100. क्लियर? और ये बोल सकते हैं कि SD इज इक्वल टू PW, यहाँ से कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस N इंटू R अपॉन 100. क्लियर? ये हुआ. और आगे बढ़िए, इसमें ध्यान दीजिए, एक छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे. एक है ड्रावर एंड ड्रावी. ओके, सो अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड द ड्रावर, और क्रेडिटर और पेई. ओके, एंड अ पर्सन ऑन whom the bill is drawn is called the dravee or debitor or acceptor. Clear? Date of bill and face value. So the date on which the bill is drawn is called the date of bill. Clear? And the amount of which the bill is drawn is called the face value. जब अमाउंट हम फाइंड निकालते हैं बिल में से तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू. और FV of the bill, FV is the sum due on the present worth, and period of the bill is the time after completion of which the drawer receives the payment of the bill. Clear? And then nominal due date and legal due date means what? The date on which the period of bill expires is called the nominal due date, and the buyer has to make the payment to the seller on this date. So the buyer is allowed to pay the amount even 3 days later. These 3 days are called the days of grace, and the date obtained after adding 3 days of grace to the nominal due date is known as the legal due date. Okay, legal due date. Okay, so now discount a bill. बिल पे डिस्काउंट देने के लिए क्या होता है? द ड्रावर ऑफ द बिल वॉन्ट्स मनी बिफोर द लीगल ड्यू डेट, देन देयर इज़ अ फैसिलिटी अवेलेबल एट द बैंक और विच एन एजेंट हु कैन discount the bill and pay the amount to the drawer. In this case, some amount from the face value of the bill is deducted. So this is called the discount of the bill. Clear? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, कैश क्या है, वैल्यू कैश वैल्यू क्या है, बैंकर्स गेन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए. तो व्हेन अ बिल इज़ डिस्काउंटेड इन अ बैंक, द बैंकर्स विल डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द फेस वैल्यू of the bill at the given rate of interest for the period from the date of discount to the legal due date and pay the balance to the drawer. Okay, and this amount is known as the banker's discount or BD. And the amount paid to the holder of the bill after deducting banker's discount is known as the cash value or CV of the bill paid on the date of the discounting. The banker's discount is called the commercial discount. ये समझिए आपको बात, commercial discount क्या है. And then true discount is calculated on the present worth, and the banker's discount is calculated on face value, sum due जिसको हम बोलते हैं. Hence the banker's discount is always higher than the true discount. Clear? And the difference between the banker's discount and the true discount is called the banker's gain. जब true discount में से ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट दोनों में से जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो वो जो होता है वो बैंकर्स गेन होता है.
इट इज़ इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट। क्लियर? यस। अब आइए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 प्लीज़ ध्यान रखिए। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द सम 10,920 ड्यू 6 मंथ हैंस एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो SD कितना है, मतलब SD है इसका, SD सम ड्यू जिसको बोलते हैं ₹10,920 है। ओके, और एन की वैल्यू कितनी है 6 मंथ, बिकॉज हाफ ईयर्स है। ठीक है, और रुपीज़ कितना है 8%, मतलब आर कितना है 8% है। तो SD इज इक्वल टू PW 1 + NR/100। ये मैंने फॉर्मूला आपको पीछे बताया है, आप उसको देख भी सकते हैं। तो SD की वैल्यू है कितनी 1090920। ओके, और PW इज इक्वल टू क्या हो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 + 1/2 × 8/100। तो 1/2 से 8 कैंसिल करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, और आप कितना जाएगा 10,920 इज इक्वल टू PW ब्रैकेट में 1 + 4/100। क्लियर? यस। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 10,920 इज इक्वल टू PW 1 + 1/25, क्योंकि आप 4 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा ये। क्लियर? एंड फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 10,920 इज इक्वल टू PW 26/25। इधर से इसको मल्टीप्लाई किया, 25 × 25 + 1 किया तो 26/25 हो गया। फिर ऐसे आप PW की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो PW की वैल्यू आ जाएगी कितनी 10,920 × 25/26 इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 420 × 25। तो 420 × 25 करेंगे तो आ जाएगी PW की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹10,500। तो प्रेजेंट वर्थ कितनी आ गई इसकी 10,500। ओके, यस, ये हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सम ड्यू ऑफ ₹800 ड्यू 4 मंथ हैंस एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है 8,000, नंबर कितना दिया है 4 मंथ दिया है तो 1/3 ईयर्स हो गया। तो रुपीज़ की आर कितना दिया है 12.5% पर एनम, एंड SD इज इक्वल टू होता है PW ब्रैकेट में 1 + NR/100। ये फॉर्मूला है, प्लीज़ ध्यान रखिए इसको, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। तो SD इज इक्वल टू PW की वैल्यू कितनी है 8,000 ब्रैकेट में 1 + 1/3 × 12.5/100। 3 को कैंसिल करेंगे तो इसमें आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान दो इधर, यहाँ हो जाएगा 8,000 ब्रैकेट में 1 + 125/3000। वो 3 को मैंने नीचे ले लिया तो 3,000 हो गया, और इधर से एक पॉइंट हटा तो 0 बढ़ाना पड़ा इधर, तो 100 था, 300 होता तो 1,000 हो गया। 8,000 इन ब्रैकेट 1 + 1/24, जिसको सॉल्व करेंगे तो 25/24 हो जाएगा। तो 8,000 × 25/24, एंड देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 1s 10s 100,000 10,000 लाख 2 लाख/24 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8,333.33 आएगा। तो इसकी सम जो ड्यू होगी वो आ जाएगी 8,333.33 रुपीज़। समझा? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 months हैंस एट 12% पर एनम इज़ ₹560। देन फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। तो ट्रू डिस्काउंट कितनी है ₹560, आर कितना है 12%, आर मतलब रेट, ध्यान दीजिएगा, एंड की वैल्यू 8 मंथ मतलब 8/12। अगर उसको मंथ से ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/12 हो जाएगा, 2/3 ईयर्स हो जाएगा। फिर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है PW × NR/100। तो 560 इज इक्वल टू PW इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2/3, आर की वैल्यू कितनी है 12/100। तो 3 4 12 कर देंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। तो PW × 8 और /100 तो 560 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो PW इज इक्वल टू कितना आएगा 560 × 100/8 इज इक्वल टू ₹7,000। सो PW की वैल्यू कितनी आ गई ₹7,000। क्लियर हुआ इतना? सो प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल इज़ ₹7,000। सो सम ड्यू की वैल्यू आ जाएगी PW प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो 7,000 + 560 रुपीज़ 7,560 रुपीज़ आ गई। ये द सम ड्यू ऑफ द बिल इज़ 7,560 हो गया, और प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल जो होगा वो कितना हो जाएगा 7,000। समझा? यस, गुड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम इज़ 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। तो आ जाएगा ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 सम ड्यू आर कितना है रेट 12%, सम ड्यू हो जाएगा PW प्लस TD ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू इज इक्वल टू PW प्लस 3/8 सम ड्यू मतलब SD। तो सम ड्यू इज इक्वल टू क्या होगा -3/8। देखो PW इधर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो सम ड्यू माइनस ये प्लस, ये जो प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -3/8 सम ड्यू इज इक्वल टू PW हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा PW इज इक्वल टू 8 1 8 5/8 सम ड्यू हो जाएगा। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है PW × N × R/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए तो हो जाएगा कितना
इधर ध्यान दीजिए, इधर पे हो जाएगा 3/8 सम ड्यू इज इक्वल टू 5/8 सम ड्यू। ये प्रेजेंट वॉट के बराबर है, इसीलिए प्रेजेंट वॉट के प्लेस पे 5/8 सम ड्यू लिखा, इंटू n इंटू 12/100 कर दिया। और यहाँ हो जाएगा 3/8 सम ड्यू इंटू 8/5 इंटू सम ड्यू हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, और ये 100 इधर हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 12n अपॉन कितना आ जाएगा 100। क्लियर। इसको इधर लेके गया, 5/8 है सम ड्यू को इधर लेके गया 3/8 का, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3/5 हो जाएगा, और सम ड्यू कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 12n अपॉन 100, 12/100। ओके, एंड देन वी कैन राइट हियर व्हाट ईजिली। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/5 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 12 इज इक्वल टू n। ऊपर नीचे करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। क्लियर। एंड देन इतना क्लियर हुआ, समझाया बेटा इतना। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो द पीरियड ऑफ द बिल इज़ 5 ईयर्स। क्लियर हो गया, ये हो गया फोर्थ वाला। नाउ फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाले क्वेश्चन दिया है कि 20 कॉपीज ऑफ द बुक कैन बी परचेज्ड फॉर द सर्टन सम पेएबल एट द एंड ऑफ द 6 month एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश एंड देन फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ द 1 book इज ₹X ले लिया, देन द कॉस्ट ऑफ 20 books ₹20X हो जाएगा। So now the cost of 20 books is the same as the cost of 21 books. तो लिखेंगे interest on the 20x ₹20x for 6 months at the rate of R% will be same as the cost of 1 book. तो यहाँ लिखेंगे x is equals to 20x into 1/2 into R/100। तो जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी x into 2 into 100/20x। 20 से 100 कैंसिल करेंगे, पहले आप 10 से कट कर दीजिए, तो 2 10 20, फिर 10 से कट जाएगा 0 x से x कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम आ गया। क्लियर हुआ इतना? यस। नेक्स्ट आइए देखिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड द बैंकर्स गेन ऑन बिल ऑफ ₹4,240 ड्यू 6 month हैंस एट 9% पर एनम। So sum due is rupees what 4,240 and n is equal to 6 month, मतलब 6 month का मतलब हो गया हाफ ईयर्स, और r की वैल्यू हो गई 9%। तो बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के लिए BD इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है SD इंटू n इंटू R/100। मैंने आपको पहले ही ये फॉर्मूला बता दिया है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और यहाँ पे BD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो BD इज इक्वल टू क्या हुआ, BD इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 मिनट, हाँ बेटा, BD इज इक्वल टू कितना हो गया SD इंटू n इंटू R/100। तो SD की वैल्यू लिखा 4,240 इंटू 1/2 इंटू 9 और अपॉन 100 हो गया, एंड हो गया 4,240 इंटू 9/200 हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी PD की वैल्यू 190.80। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना आ गया 190.80 हो गया। समझा? ओके, आगे बढ़िए। अभी हमें और बहुत कुछ फाइंड करना है, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है। तो लेट द ट्रू डिस्काउंट बी x, तो देन द BD इज इक्वल टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD फॉर हाफ ईयर्स एट 9%। ओके, तो हो जाएगा TD की वैल्यू x लिया, x प्लस x इंटू 1/2 इंटू 9/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में था, तो आ जाएगा 190.80 इज इक्वल टू x इंटू 9x/200 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा 190.80 इज इक्वल टू 209x/200, ये 200 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 190.80 इंटू 200/209। फिर उसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, x की वैल्यू आ जाएगी 182.60 अप्रॉक्स। तो ट्रू डिस्काउंट कितनी आ गई 182.60। क्लियर। बैंकर्स गेन कितना आएगा आप देखिए, बैंकर्स गेन निकालना है तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला होता है BD माइनस TD, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है वही आता है बैंकर्स गेन। तो 190.80 जो था वो बैंकर्स डिस्काउंट था, और ट्रू डिस्काउंट जो था वो 182.60 था। तो जब उसको माइनस करेंगे तो 8.20 आ जाएगा। तो बैंकर्स गेन कितना हो गया 8.20 रुपीज़। क्लियर हो इतना? गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल इज़ ₹2200 एंड द बैंकर्स डिस्काउंट इज़ 2310। सो इफ़ द बिल इज़ ड्यू 10 month हैंस देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो TD इज इक्वल टू रुपीज़ कितना दिया है 2200, BD की वैल्यू दिया है 2310। ठीक है, और फिर n की वैल्यू 10 months, तो 10/12 इज इक्वल टू 5.6 ईयर्स। सो हो जाएगा BD इज इक्वल टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD फॉर रुपीज़ फॉर 5.6 ईयर्स एट द रेट ऑफ R%। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2310
इज इक्वल टू टी डी की वैल्यू है 2200 प्लस 2200 इंटू 5/6 इंटू R/100। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे, 6 से इधर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2310 माइनस 220 इज इक्वल टू 55/3 R। सो इसको जब माइनस करेंगे तो 110 इज इक्वल टू 55/3 इंटू R। तो R की वैल्यू निकल जाएगी 110 इंटू 3/5 55। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 55 1 55 55 2 110 तो 2 3 6। तो इसके R की वैल्यू कितनी आ गई 6%। समझा। Now question number 8. So a bill of rupees 6,395 drawn on the 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is the cash value of the bill? So face value of the bill is rupees what? Rupees 6,395 rupees 8 R की वैल्यू कितनी दिया है, रेट कितना दिया है 8%। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग द बिल इज इक्वल टू 19 जनवरी 2015 एंड पीरियड ऑफ द बिल कितना था 8 मंथ हो जाएगा। तो नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो जाएगा 19 सितंबर 2015 एंड लीगल ड्यू डेट जो होगा 22 सितंबर 2015। तो डेट ऑफ द डिस्काउंट कितना होगा 28 फरवरी 2015। द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्काउंटिंग ऑन द लीगल ड्यू डेट इज फॉलोज लाइक दिस। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 22 और टोटल जो हो गए कितना होगा 206 डेज। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 200, एन की वैल्यू 206/365 क्योंकि आपको पता है 1 ईयर में 365 डेज होता है। तो 206/365। तो बी डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन एफ वी मतलब फेस वैल्यू रुपीज़ 6,395 फॉर 206 डेज एट 8%। तो बी डी का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इंटू n इंटू R/100। तो 6395 ये फेस वैल्यू है इंटू 206/365 दैट इज n एंड R इज इक्वल टू 8/100। सो वी कैन राइट हियर व्हाट बी डी इज इक्वल टू 288.74 इतना आएगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना आ गया रुपीज़ 288.74। अब इसका कैश वैल्यू निकालेंगे सी वी। तो सी वी का फॉर्मूला होता है एफ वी माइनस बी डी फेस वैल्यू माइनस बी डी मतलब बैंकर्स डिस्काउंट। तो 6,395 माइनस 288.74 इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6,106.26। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्टार जो लगा है इसका मतलब ये हुआ कि आपके टेक्स्ट बुक में इसका क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। तो द कैश वैल्यू ऑफ द बिल कितना आ गया 6,106.26 रुपीज़। समझा इतना गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज़ a bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for rupees 7,680 on certain date. Then find the date on which it was discounted at 10% per annum. So face value कितनी है इसकी? face value is equal to face value SD both are the same. So rupees 8,000 and R is equal to given 10%. CV is equal to cash CV is equal to given rupees 7680 में 7,680। तो बी डी इज इक्वल टू एस डी माइनस सी वी होता है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 320 आ जाएगा। तो बी डी बैंकर्स डिस्काउंट कितना आ गया 320। तो बैंकर्स डिस्काउंट सोर्स टू फॉर्मूला होता है एस डी इंटू एन इंटू R/100। तो 320 इज इक्वल टू 8,000 इंटू एन इंटू 10/100 एंड देन वी कैन राइट हियर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 8,000 क्योंकि 0 कैंसिल हो जाएगा तो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 800 एंड तो एन की वैल्यू आ जाएगी 320/800 इज इक्वल टू 2/5 ईयर्स। तो ईयर्स आ गई 2/5 ईयर्स। अब इसको मंथ में क्योंकि मंथ वो किस में था वो डे में था। तो 2/5 इंटू 365 डेज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना है एन की वैल्यू 146 डेज। समझा। डेट ऑफ ड्राइंग द बिल इज इक्वल टू 5th जनवरी 1998। तो पीरियड ऑफ द बिल कितना होगा 8 मंथ के लिए फॉर 146 डेज है, ध्यान दीजिए। एंड नॉमिनल ड्यू डेट कितना होगा 5th सितंबर 1998। लीगल ड्यू डेट कितना होगा 8 सितंबर 1998। ओके एंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट डिस्काउंटिंग टू द लीगल डेट इज़ 146 डेज। ओके एंड द डेट ऑफ डिस्काउंट द बिल इज़ ऑब्टेन बाय द डिडक्टिंग 146 डेज फ्रॉम द लीगल ड्यू डेट दैट इज़ 8 सितंबर 1998। क्लियर। तो आप देख लीजिए 146 डेट कैसे आएगा। सितंबर का 8 दिन, अगस्त का 31 डेज़, जुलाई का 31 डेज़, जून का 30 डेज़, मई का 31 डेज़, अप्रैल का 15 डेज़। तो टोटल कितना हो गया 146 डेज़। तो
तो द बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 15 अप्रैल 1998, वो आपके क्वेश्चन में दिया है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज, नाउ लिसन केयरफुली. A bill is drawn on 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is rupees 43,500, then find the face value of the bill. So cash value is given what, rupees 43,500, R के लिए दिया है 5%. Date of drawing is equal to what, 5th June, and period of the bill is equal to 6 months. नॉमिनल ड्यू डेट दिया है 5 दिसंबर, लीगल ड्यू डेट दिया है 8 दिसंबर, डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है 19 अक्टूबर. नंबर ऑफ डेज़ कितना हो जाएगा, आप काउंट करो. देखो तो देगा कितना, अक्टूबर का 12, नवंबर का 30 डेज़, दिसंबर का 8 डेज़, क्योंकि 8 दिसंबर तक ही दिया ना, तो सबको ऐड करेंगे तो 50 डेज़. तो नंबर ऑफ मतलब एन निकालेंगे तो पीरियड निकालेंगे तो 50/365 ईयर्स में आ जाएगा. तो लेट द फेस वैल्यू जो होगा इसका, मतलब एस डी जो होगा वो कितना आ जाएगा, एक्स, ऐसा कंसिडर करना है आपको. एंड देन उसके बाद में होता है बी डी इज इक्वल टू एफ वी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो एफ वी मतलब एच डी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. फिर यहाँ पे क्या होगा, बी डी एफ वी की वैल्यू है एक्स इंटू 50/365, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू है 5/100. तो इक्वल टू एक्स इंटू 140, एक्स अपॉन 146. तो बी डी इज इक्वल टू एफ वी माइनस सी वी होता है, तो एक्स माइनस 43,500. जब x अपॉन 146 इज इक्वल टू एक्स माइनस 43,500 करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा. तो आ जाएगा 43,500 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपॉन 146. सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 43,500 इज इक्वल टू 146 एक्स माइनस एक्स अपॉन 146. आइए इसको आगे देखते हैं अभी. फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43,500 इज इक्वल टू मतलब इंटू 146 इज इक्वल टू 145. जिसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 43,500 इंटू 146 अपॉन 145. सॉल्व करेंगे तो 43,800 आ जाएगा. तो फेस वैल्यू ऑफ द बिल जो है वो कितना आ गया, 43,800. क्लियर हुआ इतना. ओके गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ओके. सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल for 7,000 and the was discounted on 6th July. ध्यान दीजिएगा, इस डेट आपको याद रखना है, मतलब पता रखना है कि ये डेट ऐसा सा है तो फिर आपको कितना डिस्काउंटेड होगा. जुलाई 8 5% पर एनम. द बैंकर पेड 6,930 फॉर द बिल. देन फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. ओके तो हो जाएगा यहाँ पे फेस वैल्यू और एस डी इज इक्वल टू 7,000. आर कितना दिया है 5%. कैश वैल्यू दिया है 6,930. तो बी डी इज इक्वल टू एस डी माइनस सी वी. तो 7,000 माइनस 6,930 माइनस करेंगे कितना आएगा 70. तो बी डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो हो जाएगा बी डी की वैल्यू आ गई 70 इज इक्वल टू 7,000 इंटू एन इंटू 5/100. तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 70/350 इज इक्वल टू 1/5 ईयर्स. तो 1/5 ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेज़ में. तो आ जाएगा कितना, एन इज इक्वल टू 1/5 इंटू 365 इज इक्वल टू 73 डेज आ जाएगा. तो टू फाइंड द लीगल ड्यू डेट 73 days are the counted from the date of the discounting, that is 6th July. So जुलाई का 25, अगस्त का 31 और सितंबर का 17, ये मिलाकर कितना हो गया 73. तो टोटल डेट आपका इतना आ गया डी. तो hence the legal due date is 17th September, nominal due date is 14th September और date of drawing is 14th April. So hence the period of the bill is from 14th April to 14th September, that is 5 months. Clear? Okay. Now question number 12, that is if difference between the true discount and banker's discount on the sum due 4 months hence is rupees 20, then find the true discount, banker's discount and amount of the bill, the rate of the simple interest charged being 5% per annum. Then true discount आपको कंसिडर करना है कि let TD be rupees X. ओके एंड देन फिर यहाँ पे क्या होगा, बैंकर्स गेन क्या होता है आपको पता है. बैंकर्स गेन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन BD एंड TD. तो BD माइनस TD करेंगे तो कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन TD फॉर 4 months एट 5% पर एनम. तो बैंकर्स गेन कितना आया था 20. ओके कितना आया था 20 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 4/12 क्योंकि 4 मंथ दिया है तो 4/12 इंटू 5/100. सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20
कितना आएगा बेटा 20 इक्वल टू एक्स अपॉन 60, तो 20 इंटू 60 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया 1200। बैंकर्स डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या होगा, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू बी जी प्लस टी डी। तो 20 आ गया बी जी और 1200, तो इसको ऐड करेंगे तो 1220। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना आ गया 1220। तो अमाउंट ऑफ द बिल क्या हुआ, ध्यान दीजिए, लेट द अमाउंट ऑफ द बिल फेस वैल्यू बी रुपीज़ वाई, सो बी डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन एफ वी फॉर 4 months एट 5% पर एनम। सो 1220 इज इक्वल टू वाई इंटू 4/12 इंटू 5/100 एंड देन 1220 is equal to y upon 60, तो 1220 into 60 is equal to y, so we have to recalculate, then y is equal to 73,200. So amount of the bill is कितना आ गया 73,200. Clear? Yes, this way you have to solve it. Clear? And then next. Now question number 13. 13 is what? A bill of 51,000 was drawn on 18th February. So 2010 for 9 months and it was encashed on 28th June 2010 at 5% per annum. Calculate the banker's gain in true discount. तो फेस वैल्यू इसकी ऑफ द बिल क्या है 51,000, आर की वैल्यू है 5%, डेट ऑफ द ड्राइंग ऑफ द बिल जो है 18 फरवरी 2010, पीरियड ऑफ द बिल कितना 9 months, नॉमिनल ड्यू डेट कितना 18 नवंबर 2010 और लीगल ड्यू डेट इसकी है 21 नवंबर 2010। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो है वो 28 जून है। सो नंबर ऑफ़ डेज़ अगर आप काउंट करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए जून में हो गया 2 days, क्योंकि है ना, ये कितना होगा जून में 2 days बचेगा, जुलाई में 31 days, अगस्त में 31 days, सितंबर में 30 days, अक्टूबर 31 days, नवंबर 21 day। तो टोटल जब काउंट करेंगे तो 146 days। जब 146 days होगा तो नंबर एंड फाइंड करेंगे तो पीरियड होगा 146/365 इज इक्वल टू 2.5 years। तो 2.5 जब ईयर्स आ जाएगा तो प्लीज़ ध्यान रखिए इसके बाद क्या होगा इसमें, तो हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू एफ वी इंटू एल इंटू आर अपॉन 100, तो हो जाएगा 51,000 इंटू 2/5 इंटू 5/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ₹1020। तो ऑल्सो बी डी इज इक्वल टू टी डी प्लस इंटरेस्ट ऑन टी डी फॉर ₹2/5 years एट 5%। तो टी डी बी ₹x, तो 1020 इज इक्वल टू एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स इंटू 2/5 इंटू 5/10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1020 इज इक्वल टू एक्स प्लस x/50। तो सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ध्यान दीजिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो ट्रू डिस्काउंट जो आ गई वो कितनी आ गई 1000। तो बैंकर्स गेन क्या होता है आपको पता ही है कि बी जी इज इक्वल टू बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बी डी माइनस टी डी। तो 1020 माइनस 1000, तो बी डी कितना है बैंकर्स डिस्काउंट 20। तो बैंकर्स गेन कितना आ गया 20 रुपीज़। इसका भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आंसर टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है इसलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ सर्टन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 of the present worth, what is the rate of interest? So SD is equals to 21/20 PW दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ बोला है ऑफ द प्रेजेंट वर्थ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एंड केवल 3 months तो 1/4 ईयर्स हो जाएगा, 3/12 करेंगे तो 1/4 ईयर्स आ जाएगा। तो एस डी इज इक्वल टू क्या दिया है पी डब्ल्यू प्लस टी डी होता है, फिर पी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू 21/PW। तो P21 को इधर नहीं इसको इधर लेके आएंगे तो 21/20 PW माइनस PW। तो टी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 21/20 PW माइनस PW। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी डी इज इक्वल कितना आ जाएगा PW 21/20 माइनस 1। तो 21 माइनस 20 करेंगे तो 1/20, तो कितना आ जाएगा टी डी इज इक्वल टू 1/20 इंटू PW। तो टी डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो PW के टी डी के प्लेस पे 1/20 इंटू PW रखेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या PW इंटू 1/4 इंटू आर अपॉन 100, यहाँ हो जाएगा 1/20 इंटू PW इज इक्वल टू PW इंटू 1/4 इंटू आर अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। सो द रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है 20% पर annum आएगी। एंड नेक्स्ट दैट इज़ 15 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है कि अ बिल ऑफ अ सर्टन सम ड्रॉन ऑन 28 February 2007 and for 8 months was encashed on 26 March 2007 for rupees 10,992 at 14% per annum, then find the face value of the face value मतलब SD of the bill। तो कैश वैल्यू कितना है इसका 10,992, आर कितना है 14%, लेट द फेस वैल्यू से क्या लेंगे x। तो डेट ऑफ द ड्राइंग कितनी है 28 February, पीरियड ऑफ द बिल कितना है 8 month, नॉमिनल ड्यू डेट कितना है 28 अक्टूबर, लीगल ड्यू डेट कितना है 31 अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर,
डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है 26 मार्च 2007. नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्काउंटिंग ऑफ द लीगल ड्यू डेट, तो इसमें आ जाएगा मार्च में 5 डेज़, अप्रैल में 30 डेज़, मई में 31 डेज़, जून में 30 डेज़, जुलाई में 31 डेज़, अगस्त में 31 डेज़, सितंबर में 30 डेज़, अक्टूबर में 31 डेज़, टोटल हो जाएगा 219. तो इसका निकालेंगे एन की 219/65 ईयर्स, तो आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू एफ वी माइनस सी वी, तो इक्वल टू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 10,992. एंड देन वी कैन राइट हियर व्हाट बी डी इज इक्वल टू एफ वी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, तो एक्स इंटू, क्योंकि एफ की वी की वैल्यू एक्स लिया है 219/65 इंटू 14/100, सॉल्व करेंगे तो 0.084 एक्स आ जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 0.084 एक्स इज इक्वल टू 10,992. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू 10,992 अपॉन 0.916, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12,000. तो फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज़ 12,000. क्लियर. थैंक यू. जय हिंद.